तो फर्स्ट टॉपिक है फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर। न्यूज में क्यों था? इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर called for the fair representative global order at the first बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। तो बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है, वहां पे इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर ने बोला है, मतलब कहा कि फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर। हाँ, उसके बाद है वाई ग्लोबल ऑर्डर इज नॉट फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक P5 कंट्रीज है ना, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में। उसके बाद है मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, इनइफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, ट्रेड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर, क्लाइमेट चेंज इनइक्वालिटीज, टेक्नोलॉजिकल एंड नॉलेज डिवाइड। Marginalization of global order में is a global north has 9 times more voting power then at the IMF, then south. than south। और उसके बाद ये भी बता रहे यूनाइटेड स्टेट है 16.44% of votes in IMF board despite representing only 4.22% of the world population। अब इसमें है नो टू टर्म। क्या है? ग्लोबल ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? इट रेफर्स टू द arrangement of power and authority that provides the framework for the conduct of diplomacy and world politics on a global scale. In the world affairs, order brings a certain method in the way of countries conducts its affair with other countries. वे फॉरवर्ड हमें पढ़ना नहीं है, आगे देखना है। ये क्या दिया? स्कैन वीकली फोकस। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्डर राइज एंड पॉलिटिकल डिक्लाइन, इसको स्कैन करने से मिल जाएगा। उसके बाद इंडिया स्ट्रेटजी इन इंडियन ओशन, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स presented report on evolution of Indian ocean strategy in Lok Sabha. Why Indian Ocean matters? Indian Ocean is third largest oceanic division in the world. Third largest oceanic division in the world। Hosts one third of the world population. Over 2/3 of the world oil shipment transit through it. 65% ऑयल शिपमेंट हमारा इंडियन ओशियन से होता है ना, वर्ल्ड का टोटल वर्ल्ड। 90% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम इधर इंडियन ओशन से होता है, इंक्लूडिंग nearly all oil imports passes through the Indian Ocean. India has a 2.4 million square kilometer exclusive economic zone. 2.4 million square kilometer in the Indian Ocean. India strategy in Indian Ocean क्या है? Strategic partnership में India approach the IOR has been guided by the neighborhood first policy and the सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डॉक्ट्रिन। इन मार्च 2025 इंडिया आउटलाइंड महासागर। मार्च 2025 में महासागर लॉन्च किया इंडिया। इसमें क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स डॉक्ट्रिन एंड एक्सटेंशन ऑफ सागर डॉक्ट्रिन। महासागर फोकस ऑन क्या है? मैरीन टाइम लीडरशिप, मैरीन टाइम कैपेबिलिटीज, ग्लोबल साउथ, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, मैरीन टाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। Net security provider. India has established itself as the net security provider in the IOR. India actively net security provider in Indian Ocean region. India actively engages in counter-piracy operations and cooperates with other nations to combat IUU fishing
maritime terrorism, and maritime criminal activities. India also conduct joint EEZ surveillance exercise and share information through information fusion. Engagement with littoral state. इसमें क्या है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया है ना, सेशल्स हो गया. डेवलपमेंट असिस्टेंस कैपेबिलिटी. आज तक लिटोरल स्टेट किसको बोलते हैं? जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है, चारों साइड साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ. हाँ. पेनिनसुला बोलते हैं 3 साइड से घिरा हुआ. हाँ. हाँ. Infrastructure and connectivity. India has been investing the development of ports such as Chawar ports across the Indian Ocean, such as in Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, to enhance connectivity. ये सब है. Important multilateral platform in the IORA. क्या है? Indian Ocean Rim Association. India has founding member of the 23rd member IORA regional grouping, aiming to strengthen the economic cooperation and maritime safety. ठीक है, तो इंडिया इसका क्या है? IORA का फाउंडिंग मेंबर है. इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया. हाँ. जिसमें टोटल 23rd मेंबर है. 23rd मेंबर, 23 मेंबर. Indian Ocean Naval Symposium, launched in 2008 by India, it seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral state. Indian Ocean Naval Symposium, launched in 2008 by India. Indo-Pacific Ocean Initiative, announced by India in 2019, is an open, non-treaty-based global initiative that seeks to manage, conserve, sustain, and secure the maritime domain. उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. इट एड्रेस मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, HADR, environment protection, connectivity, strategic technology, supply chain resilience, health, education, and cyber security, amongst others. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. India is the lead country for security pillar of BIMSTEC, which covers counter-terrorism and transitional crime, disaster management, and energy security. Indian Ocean Commission, a smaller organization, it focuses on economic, environmental issue, and maritime security. India is a observer state. किसका? इंडियन ओशन कमीशन का. इंडिया क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट. चैलेंजेस वगैरह ये सब देखने का है. मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी गैप है, जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम है. उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. सेंट्रली क्या न्यूज में क्यों था? एशियान सेंट्रली is under the growing strain from the great power rivalry, trade tension, and shifting order, requiring bold reform and deeper partnership with Indo-Pacific region. About ASEAN में देखते हैं. established हुआ है 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing the ASEAN Declaration. Bangkok Declaration भी इसको कहते हैं. Aims accelerate regional economic and cultural progress, promote peace, stability, and the rule of law, foster collaboration across education, trade, agriculture, and industry. सेक्रेटेरिएट जकार्ता में है इसका, है ना? एशियान का सेक्रेटेरिएट जकार्ता में है. 10 मेंबर हैं इसके. ठीक है, 10 मेंबर में ये हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट में क्या अंतर होता है? मुझे तो सेम ही लगता है, हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट. हेडक्वार्टर अलग होता है, सेक्रेटेरिएट अलग होता है. जैसे इसका जो एशियान का हेडक्वार्टर आई थिंक मुझे लगता है कहाँ पर है. तो इसमें सेक्रेटेरिएट एशियान का देखते हैं. एशियान हेडक्वार्टर चेक कीजिए तो वही है. एशियान का फिलीपींस मनीला में होगा क्या? हाँ, तो और सेक्रेटेरिएट अलग जगह है, देख रहे हैं.
नहीं यार, आप पूजा, आप कुछ बोल नहीं रही हो आज। Secretariat Administrative Office responsible for the policy formulation, coordination and supervision of a government department. Headquarter क्या है? The main central office of organization, civil military cooperation or international from where it operates and control its activity. Scope में क्या है? Secretariat it refers mainly to the governmental bodies. Example state secretariat, ministry secretariat, headquarter it is organization. ऐसा कुछ खास तो दिया नहीं है. Secretariat headquarter frame policy, rules and procedure for implementation, directs, manage, control, operational and field work. Deals with legislation, coordination among the department. डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल किया जाता है, Handle तो वहाँ पे day-to-day activity, logistic. यहाँ पे रूल एंड लॉ बताएगा. High level decision making. Example secretariat. Union secretariat function through the ministry like home ministry or finance ministry. State secretariat headed by the chief secretary. Headquarter army headquarter, UN headquarter. अरे हेडक्वार्टर एक जगह फिक्स रहता है, जो सेक्रेटेरिएट होता है वो रोटेट होते रहता है, वो चेंज होते रहता है ना, कि आज इस देश को मिला है सेक्रेटेरिएट तो नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं. सेक्रेटेरिएट हाई लेवल पॉलिसी एंड प्लानिंग बॉडी है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल मतलब ये प्लानिंग करेगा, लेजिस्लेटर करेगा. देखिए ओवरऑल ये देखिए कि वो प्लानिंग बॉडी है और ये डे टू डे एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंटेशन टाइप है हेडक्वार्टर से. हाँ, वो लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूटिव टाइप से है. उसका इंडोनेशिया है ना, जकार्ता इंडोनेशिया. उसके बाद तो इसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता में है. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आर द फाउंडिंग मेंबर. एशियान समिट क्या है? इट इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन एशियान, comprising the head of a state or government of ASEAN members state. Article 1.15 of the ASEAN Charter emphasizes that the grouping primary goal is to uphold the centrally and active role of ASEAN as the main driving force behind its relation and cooperation with external partners. मेंबर कौन है? लाओस है, इधर म्यांमार है, वियतनाम है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया है. मतलब म्यांमार से ऊपर से स्टार्ट कीजिए, सारा पढ़ते जाइए नाम नीचे तक, सिंगापुर हो जाएगा सर. उसके बाद है रिलेवेंस ऑफ एशियन कंट्री इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी थ्रू द फोरम लाइक एशियन रीजनल फोरम ARF and ASEAN Defense Minister Meeting Plus ADMM Plus. ASEAN provides space for defense, maritime security dialogue involving both member and external power. Economic integration में क्या है? Recap. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, was ASEAN-led strengthening the regional trade link across Asia Pacific. Non-building में क्या है? Treaty of Amity and Cooperation, originally meant for the Southeast Asian state, has evolved into a key regional framework with major power of China, US, Russia, threats to ASEAN centrality. इसमें क्या? ग्रेट पावर राइवलरी है, यूएस टैरिफ है, ओवरलैपिंग रीजनल आर्किटेक्ट्स. वे फॉरवर्ड हमें पढ़ना नहीं है. उसके बाद है हाउ इंडिया कैन डील विद द शिफ्ट एशिया सेंट्रलिटी. सिंक्रोनाइज एफर्ट्स होगा, एक्सप्लोर पोटेंशियल synergy like sub-regional framework such as Indian Ocean Rim Association, BIMSTEC, है ना, इन सब पे ध्यान देना होगा. उसके बाद है न्यूज इन शॉर्ट्स. क्या है? इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. द फिलीपींस एंड इंडिया फॉर्मली elevated their bilateral ties
through the declaration of establishing a strategic partnership guide by the Plan of Action 2025-2029. मोर इन द न्यूज, तो हमें ये देखना है कि इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है प्लान ऑफ एक्शन के लिए 2025 से 29 के लिए। द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश 1949 में हमारा इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट हुआ है डिप्लोमेटिक टाइज। इंडिया फिलीपींस रिलेशन ओवरव्यू देखते हैं। बायलैटरल ट्रेड है लगभग $3.05 बिलियन है। पीपल टू पीपल टाई है। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे है। एक मतलब दोनों है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद है मैरीन टाइम है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, ब्लू इकोनॉमी है। ये सब कॉमन। हाँ, डिफेंस पार्टनरशिप है। ब्रह्मोस हमने इसको दिया था, पहला बायर था फिलीपींस, है ना। ब्रह्मोस हाँ, दूसरा इंडोनेशिया है। इंडो पैसिफिक विजन इंडियाज ईस्ट पॉलिसी, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह। हाँ, उसके बाद है यूएन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट विद द यूएन under the Global Capacity Building Initiative for Asia, Africa, Caribbean countries. UN under Global Capacity Building Initiative for Asia, Africa, Caribbean countries. About the Global Capacity Building, Genesis, India and UN jointly launched it in September 2023. Objective क्या है? Share India development experiences, best practices and expertise with Global South nation. उसके बाद है implemented through the UN India SDG Country Fund, India Technical and Economic Cooperation. Eurasian Economic Union. India Eurasian Economic Union recently signed term of the reference for trade deal. Signing a term of reference marks the formal commencement of Free Trade Agreement (FTA) negotiation with the goal to establish a long-term framework for trade cooperation. यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसमें क्या है? यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन में रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आर्मेनिया है, बेलारूस है। यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन, हाँ ये किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस। हाँ, या बेलारूस तो याद रह जाएगा, कजाकिस्तान किर्गिस्तान भी याद हो जाना चाहिए। आर्मेनिया छोटा सा है इधर। इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ट्रेड एक्सपांशन वगैरह होगा, मार्केट एक्सेस होगा, यही सब है। तो बस ये याद रखना है हमें कि यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन में टोटल कितने कंट्री है? 4 कंट्री है, 5 कंट्री है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF treaty. Russia officially ended commitment to 1987 Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Russia cited recent US military action as a key reason, including the US order of repositioning 2 nuclear submarine closer to Russian shores and deployment of Typhoon missile system in Philippines. About the INF treaty, तो साइन बिटवीन यूएस एंड रशिया, ठीक है, 1987 में, सोवियत यूनियन उस समय था। द ट्रीटी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द ट्रीटी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल grounded launch ballistic and cruise missile with the range of 500 to 550 किलोमीटर. It was the first major agreement to nuclear arsenal, remove an entire class of weapon and allow on-site inspection for verification. INF treaty has already begun after the US withdrawal in 2019. तो ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, यूएस विड्रॉ कर गया था 2019 में आईएनएफ से। आईएनएफ का क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। Implication of nuclear arm control, a breakdown of arm control framework
eroding trust and hold eroding आपकी आवाज trust. कम आ रही है। क्या कम आ रही है आवाज? ऐसा लग रहा बहुत दूर से बोल रहे हो, है ना? अब ठीक है? ठीक। ब्रेकडाउन ऑफ द कंट्रोल फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद है निगेटिव इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, रिटर्न टू कोल्ड वार पॉलिटिक्स, इंक्रीज सिक्योरिटी रिस्क, यही सब इम्प्लीकेशंस होंगे इसके। उसके बाद है की न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स, ये साइन हुआ था, इंटर इनटू द फोर्स 1970। इट एम प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट 2002 में यूएस रसिया साइन किया था बायलैटरल एग्रीमेंट। उसके बाद है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी न्यू स्टार्ट 2010 में बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड रसिया। उसके बाद है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स adopted at the UN 2017 and prohibits prohibition participating in any nuclear weapon activities. उसके बाद है आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट ब्रोक्ड बाय द यूएस। हाँ, the deal aims to bring an end decades conflict between two South Caucasus countries. South Caucasus country कहते हैं इसको। Key provision of the deal: cessation of hostilities. Both nations agreed to end armed conflict, establish diplomatic relation. Trump route for international peace and prosperity. New transit route linking Azerbaijan to its exclusive Nakhchivan through the Armenian territory. US has excluded development rights. US has excluded ने US has exclusive development right. इसमें हुआ क्या है ये देखो, ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस प्रॉस्पेरिटी, न्यू ट्रांजिट रूट लिंकिंग अजरबैजान टू इट्स एक्सक्लेव नाखचिवम थ्रू आर्मेनियन टेरिटरी। यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, ये आर्मेनिया था, ये नागोर्नो कराबाख था, और ये है नाखचिवम अजरबैजान। अच्छा, ये वाला पार्ट अजरबैजान का है। आप देखिए बीच में आर्मेनिया पड़ जाता है, हाँ, नागोर्नो काराबाख भी पड़ता है, उधर अजरबैजान का एक पार्ट इधर जो है नाखचीवन, ये अजरबैजान का पार्ट है, ये समझना। हाँ, नाखचिवन अजरबैजान का पार्ट। तो ये कर क्या रहा है, न्यू ट्रांजिट रूट लिंकिंग अजरबैजान टू इट्स, अच्छा एक्सक्लेव लिखा हुआ है ना बाहर वाला, ये एक्सक्लेव नाखचीवन थ्रू आर्मेनियन टेरिटोरी, और इसमें है यूएस एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स किसके पास है, यूएस के पास। US cooperation deal. Both countries also signed separate agreement with the US to enhance cooperation in energy, technology and economy. Background of the conflict: the Armenia-Azerbaijan conflict mainly over Nagorno-Karabakh, a mountainous region inside the Azerbaijan but predominantly populated by ethnic of Armenia है, लेकिन अजरबैजान में लेकिन आर्मेनियन पीपल था इधर। 1980s नागोर्नो-कराबाख ब्रोक अवे फ्रॉम अजरबैजान विद द आर्मेनियन सपोर्ट, तो सपोर्ट भी दे दिया तो ब्रोक हो गया। 1991 both countries gained independence from the सोवियत यूनियन बट द डिस्प्यूट कंटिन्यू, तो 1991 में ये हो गया है ना, मतलब सोवियत यूनियन टूट गया। 2023 अजरबैजान रीगेन फुल कंट्रोल, अजरबैजान पूरा कंट्रोल ले लिया, causing nearly 1 lakh Armenians to flee to Armenia.
तो इसके कारण से क्या हुआ कि 1 लाख आर्मेनियंस वहां से भागा अजरबैजान कंट्री। इंडिया इंटरेस्ट में क्या, इंडिया सपोर्ट पीस डील कॉलिंग द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। The deal is important for India as Armenia is the only country in the region with which it has a friendship cooperation treaty signed 1995 में। तो फ्रेंडशिप, हाँ, भारत के साथ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन आर्मेनिया के साथ साइन किया। अजरबैजान फॉल्स ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर रूट कनेक्टिंग इंडिया विथ रशिया थ्रू सेंट्रल एशिया। तो इसमें भी रोल है इधर थोड़ा, सेंट्रल एशिया में तो अजरबैजान आ जाता है। उसके बाद अलास्का समिट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड रशियन मीट इन द अलास्का रिगार्डिंग द सीज फायर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। About Alaska, it is a non-contiguous U.S. state on the northwest extremely of the North American continent. It was bought by the USA from the Russia as per Alaska Treaty 1867। तो ये पार्ट था किसका, यूएसए का, ये रसिया का था, लेकिन यूएसए खरीद लिया इसको, है ना, अलास्का ट्रीटी 1867 में। मेरे मतलब अमेरिका की पहले से पॉलिसी है खरीदना बेचना, इसीलिए क्या नाम है उसका, जो ट्रम्प कहता है ना कि हम इसको खरीद लेंगे मैक्सिको को, या फिर उधर ग्रीनलैंड को भी खरीदना चाह रहा था। Maritime boundaries, Beaufort Sea and Arctic Ocean north, Gulf of Alaska, Pacific Ocean south, Bering Sea west में है and Chukchi Sea north west में है। The northern lights or aurora borealis are visible across much of Alaska. Nearly 1/3 of the state lies with the Arctic Circle, and about 85% of Alaska is underlined by permafrost. यूएस 1867 में इसको खरीद लिया मैरीटाइम बाउंड्री में। हाँ, चुक्ची सी मतलब अलास्का के करीब है। हाँ, हम लोग पीछे पड़े नक्चीवन जो है वो अजरबैजान का पार्ट, नक्चीवन नक्चड़ी है। वाला बना जो सुशांत मेरे बगल में वो बना रहा है, मतलब अपने इसमें एक लड़का, मैं नहीं बना। Asia Pacific Institute for Broadcasting Development. India has been elected as the chairman of Executive Board of AIBD at the 23rd General Conference in Thailand. India has been elected as the chairman of Executive Board of AIBD, ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो इंडिया चेयरमैन चुना गया है। 23rd कहाँ पे हुआ, थाईलैंड में हुआ है। About Asia Pacific Institute of Broadcasting Development, Genesis, founded in 1977 under the auspices of UNESCO. AIBD is a unique regional intergovernmental organization. सेक्रेटेरिएट कहाँ है, कोलालमपुर पे है। Mandate to achieve a vibrant and cohesive electronic media environment in the Asia Pacific region. Members, it currently has 92 members organization from 45 countries. India is a founding member of AIBD, and the Prasar Bharati, India's public service broadcast, represent Ministry of Information and Broadcasting in the organization. उसके बाद है एरियाज कॉन्फ्लिक्ट्स इन द न्यूज। फर्स्ट है जो गाजा, खान यूनिस, राफा, उसके बाद है जबीलिया, डायर, अल्बा। रीजन क्या, यूएन ऑफिशियली डिक्लेयर famine in August 2025 with 500,000 people at risk of starvation due to the Israel prolonged blockade and restriction at entry post Hamas attack on Israel. तो राफा क्रॉसिंग यहाँ पे है,
खान यूनिस यहाँ पे है, ये वाला रीजन है। डायर अल बला, उसके बाद है जाविलिया। मतलब ध्यान ये रखना है, जबालिया जो पार्ट है वो आपका किसमें, नॉर्थ में है ना, और खान यूनिस है साउथ में, जो कि इसकी तरफ है, इजिप्ट के पास है। और जबालिया उधर आपको नहीं, खान यूनिस है जो मिडल टर्म में है इधर, अच्छा, बीच में है। राफा है जो इजिप्ट से बॉर्डर लगता है उसका। इजिप्ट के पास। Key geographical features: a small coastal strip along with the eastern Mediterranean Sea. It borders Israel on the north and east, and Egypt on the southwest. With nearly 2.2 million people, it is among the most crowded place in the world. मतलब इतना छोटा सा जगह में 22 लाख लोग रहते हैं। मोस्ट क्राउडेड, ओपन रीजन भी बोलते हैं हाँ। दुनिया का। उसके बाद है सूडान, डारफूर, खार्तूम, साउथ कोरोदफन, ब्लू नाइल स्टेट्स। तो Sudan plunged into a civil war in April 2023 after a vicious power struggle broke out between its army and a powerful parliamentary group, the Rapid Support Force (RSF), located in Northeast Africa, bordered by the Egypt to the north and the Red Sea to the northeast. Third largest country in Africa, the Nile River system, White Nile, Blue Nile, runs through Sudan. व्हाइट और ब्लू नील बहता है सूडान सूडान से। नॉर्थ उसके थर्ड बाद लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अच्छा, सूडान थर्ड लार्जेस्ट है। हाँ हाँ, अबे यार, क्या पता। यूक्रेन, कीव, डोनेस्क, Zaporizhia, Cherkasky and Chernihiv and Kharkiv, ये सब रीजन है जो यूक्रेन का है ना। ये सब तो पिछले 4 साल से न्यूज में है। ये वेव ऑफ रशियन मिशन। उसके बाद है डीआरसी, नॉर्थ कीव इतूरी प्रोविंस, ये न्यूज में है, ठीक है। इतूरी प्रोविंस ये रहा, ठीक है। और नॉर्थ कीव, कीव तो यूक्रेन में है, ये नॉर्थ कीबू है। Congo has facing a long cycle of wars in the east, shaped by the ethnic tension, weak governance, and the struggle for mineral wealth. Located in the Central Africa and the second largest on the continent, Congo River basin, second longest river in Africa. Congo rainforest, second largest tropical rainforest. Congo rainforest है, यूपीएससी पूछा था, ये सेकंड लार्जेस्ट है Congo rainforest. मिनरल रिच में कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, ये सब यहाँ पे मिलता है। फर्स्ट वो अमेजन होगा। हाँ, फर्स्ट एमएनसी। कल क्यूज रन करवाए थे, कहाँ से करवाए थे? खुद से बनाए थे? खुद से बनाए थे। अच्छा, उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है? प्रोडक्शन। वो क्यूज का जो मेन लिंक है ना, जो मेन लिंक है शेयर, वो वाला रन वाला नहीं, वो मुझे सेंड कर देना। ठीक ठीक। हाँ, ताकि उसको ना एक स्टोर है उस पे रख लूं इन फ्यूचर, फिर दोबारा। सही से। हाँ, उसके बाद है पिछले दिन एक दिन 100 क्वेश्चन किए थे, वो भी भेज दूंगा। हाँ हाँ, दोनों सब स्टोर में रख देंगे। ठीक। उसके बाद है इकोनॉमी प्रोडक्शन, क्या वाई इन द न्यूज। इन द रिसेंट रिपोर्ट द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस suggested way for India to navigate rising global trade uncertainties and growing protectionism. In recent reports, a standing committee on finance suggested way for the India navigate rising global trade uncertainties and growing protectionism, मतलब
कमिटी जो फाइनेंस है वो बताया है कि कैसे नेविगेट करना है ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज को, है ना। उसके बाद है मोर इन द न्यूज कन्फ्लिक्ट्स लाइक रसिया यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया क्राइसिस, ये सब है। रिसेंटली यूएस मूव इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स हैज आल्सो अंडरलाइन द सेम, ये सब कारण है, ठीक है। उसके बाद ये डब्बा दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव एरिया में क्या की एस्पेक्ट्स में है? नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंडिजीनियस वेपन्स इन ओपन सिंदूर, ठीक है। नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी में बात किया है ना। इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव का ये सब पार्ट है। एनर्जी रिसोर्स सिक्योरिटी, सोलर कैपेसिटी अप टू 30x इन 11 ईयर, 30 गुना बढ़ाने का मतलब ऐसा बोला है कि बढ़ा है 11 साल में। उसके बाद है क्रिटिकल मिनरल एंड टेक, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है। स्पेस सेक्टर एंड इनोवेशन, इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। उसके बाद है एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई इन ग्लोबल सप्लाई चेन, सोशल जस्टिस, डीबीटी रिवोल्यूशनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी, यूथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, विकसित भारत रोजगार योजना क्रिएटेड, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पीएम धन्य धान कृषि योजना लॉन्च किया है। पीएम हेल्थ एंड वेलफेयर में है ना, तो ये सब काम किया है। तो उसके बाद हम इधर देख लेते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट नेशन। प्रोडक्ट नेशन क्या है? व्हाट इज अ प्रोडक्ट नेशन? तो अ प्रोडक्ट नेशन इज अ कंट्री, a product nation is a country that produce and export substantial volume of high value goods, becoming a net producer rather than net importer। तो प्रोडक्ट नेशन उसको कहेंगे जो नेट प्रोड्यूसर होगा, है ना, नेट इंपोर्टर की जगह, मतलब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा इंपोर्ट करने की जगह। तो इंडिया तो हो जाएगा प्रोडक्ट नेशन। हम लोग तो प्रोड्यूस ज्यादा ही कर रहे हैं, इंपोर्ट उससे कम कर रहे हैं। हाँ, खाने पीने वाले चीजों में। हाँ, बहुत सारे ऐसे चीजों में है। हाँ हाँ। हाँ, at its core, a product nation shift from being only a consumer or assembler to becoming a creator of globally competitive goods, boosting both its economic strength and its strategic standing in the world. Smile curve inside Satan Sia's smile curve so that higher value lies in रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन। ये है स्माइल कर्व इंसाइट, ये याद रखना है। स्माइल कर्व इंसाइट है जो शो करता है कि हायर वैल्यू लाइज इन R&D, डिजाइन, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन प्योर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो स्माइल कर्व इंसाइट, स्माइल कर्व किससे रिलेटेड है? तो ये ब्रांडिंग वगैरह है, रिसर्च डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों में खर्च करोगे तो ज़्यादा मतलब वो होगा रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग, ये दिखाता है, ठीक है। जैसे कि एप्पल का है 3 ट्रिलियन मार्केट है, फैक्सॉन 85 बिलियन है। मतलब एप्पल का 3 ट्रिलियन है और हमारा इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा है ना? तो अभी 4 ट्रिलियन 4 या 5 4 हाँ 4 के अराउंड पहुंचे हैं हम लोग। हाँ। और कल पढ़े थे हम लोग कि निविदा जो एक कंपनी है वो चिप में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका टर्नओवर है वो 4 ट्रिलियन है, 8 ट्रिलियन। इंडिया के इकोनॉमी के बराबर। दुनिया का सबसे पहले 4 ट्रिलियन पहुंचने वाली एक कंपनी। उसके बाद है इन द कर्व मार्केट द केस ऑफ इन्वेस्टिंग इज इंटायर लाइफ cycle of product rather than just assembly. In the curve market, the case of investing in entire life, ठीक है। South Korea, Japan, and the several Southeast Asian nations have risen as a manufacturing hub over the last 3 decades. Challenge of becoming product nation क्या? इनोवेशन, R&D गैप है इंडिया में, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट वाला तो खर्चे ही नहीं करता R&D में।
रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बोटलनेक है, स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रेंस है। जो इंडिया का जो करोड़पति है सब, ठीक है, ये लोग क्या कर वो पैसा कमा रहा है और घपलाबाजी इधर-उधर सरकार के मतलब उसमें होल हाँ, इधर-उधर करके इनकम बढ़ा रहा है। जो बाहर वाला है वो लोग डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब रिसर्च वगैरह में ज़्यादा पैसा लगा रहा है। वो प्रोडक्ट अपना खुद का बना रहा है, मतलब वो उसका रिसर्च है। हाँ। डाटा है ना, इंडिया स्पेंड 0.65% ऑफ जीडीपी ऑन आर&डी, बताइए। हाँ। 0.6%। और ये भी लगभग ये जो है ना 0.6% इसका 90% पार्ट सरकारी है। मतलब प्राइवेट वाला कुछ करता ही नहीं है, अडानी, अंबानी ये सब। टाटा उटा उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है आर&डी पे। सही नहीं करता है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शॉर्टेज ऑफ द स्किल लेबर लिमिट इंडिया कैपेसिटी टू स्केल मैन्युफैक्चरिंग रैपिडली। उसके बाद है रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। रीजनल इम्बैलेंस इंडिया में है, तो इसके बारे में देखते हैं। द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस रिकमेंडेड सेंटर टू कम अप विथ एक्शन प्लान टू evenly distributed industries across state to reduce regional imbalance in India. More in the news. The Standing Committee on Finance is the 26th report roadmap for India economic growth in light of global economic geopolitical circumstances. Noted that industries is a state subject. However, it emphasized that central government initiatives are vital for the industrial economic survey 24-25 also highlighted the significant disparities in industrial development across state. Regional imbalance refers to the differences in the economic development and uneven economic growth in different geographical regions. Note the union list also has following industries. क्या है? Industries declared by the parliament by law to be necessary for defense or for the prosecution of war. Industries, the control of which by the union is declared by the parliament by law to be expedient in the public interest. Reasons for regional imbalance in India. Historical factors. Regional imbalance started during the British regime, concentrating development in areas like West Bengal and Maharashtra. Geographical factors. uh, Difficult terrain. Himalayan and Northeast state. Rising administration and the project cost. Political factor. Relocation of Tata Nano project West Bengal से गुजरात में due to protest. ये सब भी रीजन है, एक जगह से देता है। हाँ. Lack of growth in salaries industry. Location specific infrastructure deficit. Consequences of regional imbalance in India. Security, political fragmentation, है ना. इकोनॉमिक में क्या है? नेशनल ग्रोथ, इकोनॉमिक गैप, रीइंफोर्सिंग इम्बैलेंस, इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अगर बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकता है तो जैसे सेल था वहाँ पे ना बोकारो में, है ना, और जमशेदपुर में इतना सारा लोहा उड़ीसा से आ रहा है, कोयला है यहाँ पे, तो उधर तो इंडस्ट्री लग सकता था। बिल्कुल क्यों नहीं लग सकता? वहाँ पे लगाता तो ठीक है, कुछ चीज नहीं मिलता, बाकी रॉ मटेरियल और आपका फ्यूल वाला पार्ट तो कम मिल जाता वहीं से। हाँ, नहीं कैसे मिलता ये बताओ। लगभग जितना लोहा जो रॉ मटेरियल वो मिल रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर भी तो है। बिहार और झारखंड का जनसंख्या मिला के 15 करोड़ है टोटल, है ना। तो लोगों को इतना दूर गुजरात तमिलनाडु क्यों जाना पड़ता फिर? झारखंड में ही इतना लग जाता तो झारखंड पास है ना जी। सही बात। मेरे यहाँ से धनबाद 5-6 घंटा का रास्ता है, 6 घंटा में चला जाता आदमी, कोई दिक्कत ही नहीं होता। फास्ट ट्रेन चला देगा तो 6 घंटा में ट्रेवल हो जाएगा। नहीं कर रहा है ना, वही तो बोले, जितना ज्यादा एरिया में जैसे उड़ीसा है, झारखंड है,
इनके पास रिसोर्सेज है लेकिन इनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, पता नहीं तक। और पूरी दुनिया में यही हाल है, जहाँ रिसोर्सेज है वहीं डेवलपमेंट नहीं है, पता। अरे देखो जहाँ रिसोर्सेस है ना, वहाँ पे पिछड़ा लोग रह रहा है, ठीक है? और जहाँ रिसोर्सेस कम है, वहाँ पे लोग ऐसे रह रहे हैं वहाँ जो डोमिनेटिंग लोग हैं। इंडिया का 15% 10% पॉपुलेशन इंडिया को डोमिनेट करता है। तो वही लोग पॉलिसी मेकर है, वही सब लोग। जमशेदपुर तो इतना परफेक्ट है, सेल वहाँ पे स्टील बन रहा था, इतना दिन से तो था ना जी, कोयला। तो सेल इवन बंद होने के कगार पे है। बताइए आप यही चीज, और सेल